Hello my dear kids and welcome back to this very important session on the chapter Transport in Plants. Today we are going to solve previous year questions from the year 2021 up to the year 2010 and अगर आपने कोई भी video miss किया है, if you have skipped any lecture or any topic, so I request you all to go and watch those first and then come here so that आपको PYQs अच्छे से solve करते बनेंगे. Flawlessly you will be able to solve the PYQs. अब plant physiology का एक बहुत ही important topic है, that is transport in plants. इससे आप expect करके चलो कि एक से दो questions पूछे जा सकते हैं and the chapter is not very difficult, although conceptual है, इसमें बहुत से concepts हैं समझने वाले, जैसे कि हमारा osmosis है, then water potential, these all are important concepts. So इसी के basis पर questions पूछे जाते हैं, लेकिन एक से दो questions ही पूछे जाते हैं and the chapter is conceptual. तो ऐसे question chapters भी आपके लिए actual में very important होते हैं. अगर आपने concept समझ लिया है so errorlessly आप इनसे answers कर सकते हैं. So today's session is definitely going to be very important, and before we start with the first question, I want you all to be participating here. 10 seconds में आप सभी को आंसर देना होता है, you all know, और सभी का response मुझे chat में यहाँ पर मिलना चाहिए. Before we begin with the questions, first of all, please send me thumbs up, everyone. Please let me know that you all are present over here. Yes, hello, I'm doing great and I expect the same for you. I'm doing very good, bachcho, and I'm hoping that you all are keeping well, you all are doing well, and you all are studying consistently. So here, as I can see that many kids are present, बहुत सारे बच्चे क्लास में present हैं. All right, और सभी बच्चों को यहाँ पर रिस्पॉन्ड करना है जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. Everyone should be answering. Even if you are confused, you have to send your response. So beginning with the first question without any delay in front of us. The question is from the year 2021 only, and the question that has been asked here is list 1 and 2 is given. You have to match the columns. Okay, firstly here cohesion, adhesion, surface tension and guttation is given here. More attraction in liquid phase, mutual attraction among water molecules, then water loss in liquid phase या फिर attraction towards polar surfaces, that you have to match over here and then select the correct answer from here. यहाँ से आपको correct answer select करना है. List 1 and 2 has been given here and यहाँ पर आपको अलग अलग they have given you the processes and their उनका description उनके सामने है. So that way you have to match them correctly. Options आपके सामने है. 2021 का ही question है. The question is absolutely direct question from NCERT. NCERT की lines जहाँ पर हमने transpiration पढ़ा था, transpirational pull, ascent of sap, वहीं से as it is this has been picked and that's why I'm expecting कि यहाँ पर एक भी बच्चा ऐसा नहीं होगा जिसे कि ये question नहीं आएगा. So as I can see that the answers that I am receiving, all right. So as I can see, mostly जो आंसर यहाँ पर रिसीव हो रहा है, सबसे ज़्यादा बच्चे कह रहे हैं A has to be, one has to be the right answer here. So let's see, is that correct? Firstly, if we talk about the cohesion, cohesion क्या होता है? Is it mutual attraction amongst water molecules? Yes, definitely it is. So 2 के सामने A हमारा, yes, definitely first option में ही लिखा हुआ है. Then adhesion, what is adhesion? It is attraction towards the polar surfaces, that is right here. Then surface tension, what is surface tension? Surface tension is more attraction in the liquid phase. And then we all know guttation. What is guttation? Guttation is the loss of water in liquid phase. So in this manner we have matched the columns and here we have received the answer 1. So direct question था ये, so no problem in this. Coming to the next question, आ जाते हैं. next question हमारे सामने from the year 2020 दिया है और question में पूछा गया है the process responsible for facilitating loss of water in liquid form from the tip of grass blades at night and early morning is called as. क्या पूछा है यहाँ से? जो process which is responsible for facilitating loss of water in liquid form from the tip of grass blades at night and early morning में
क्या कहा जाता है इस प्रोसेस को? और ऑप्शंस दिए हमारे सामने, ट्रांसपिरेशन, रूट प्रेशर, इम्बिबिशन या फिर प्लाज्मोलिसिस। एंड 2020 का ही ये क्वेश्चन है हमारे सामने। सो लेट अस सी व्हाट हैज टू बी द करेक्ट आंसर। बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है, वी ऑल नो व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट हियर। किसके बारे में बात चल रही है? जब हमें सुबह सुबह ग्रास के ऊपर लिक्विड ड्रॉपलेट्स दिखते हैं अर्ली मॉर्निंग्स में और रात को, सो ये किसकी वजह से होता है? विच फिनोमिना इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस एंड व्हाट डू वी कॉल इट? दैट इज द क्वेश्चन हियर। वेरी गुड, ऑलरेडी बच्चों ने यहाँ पर आंसर कर दिया। दे आर टॉकिंग अबाउट गटेशन। बहुत ही सही बात है बच्चों, दैट इज गटेशन ओनली। व्हाट इज गटेशन? गटेशन इज द लॉस ऑफ वाटर इन इट्स लिक्विड फेज ओनली। सो दैट इज वाई ऐसी जो ड्रॉपलेट्स दिखते हैं सुबह सुबह या फिर रात को हमें ग्रास के ऊपर, दैट इज बिकॉज ऑफ गटेशन। गटेशन किसकी वजह से होता है? रूट प्रेशर की वजह से। सो बी हैज टू बी द करेक्ट आंसर हियर। गटेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है दैट यू ऑल मस्ट नो। लॉस ऑफ वाटर इन लिक्विड फेज बिकॉज ऑफ रूट प्रेशर इज गटेशन। देन कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम द ईयर 2019, 2019 का क्वेश्चन हमारे सामने है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉल्यूट्स इन प्लांट्स? एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉल्यूट इन प्लांट्स में इनमें से कौन सा करेक्ट फीचर नहीं है? ये पूछा गया है और ये क्वेश्चन पूछा है 2019 से, 2019 का क्वेश्चन है। एंड द ऑप्शंस आर occurs against concentration gradient, it is non-selective, it occurs through membranes, or it requires ATP. These are the options in front of you and you have to select which of the following is not a feature of active transport of solutes in plants. So that you have to answer. And let's see what all you have to tell for this particular question. अगर आपसे पूछा जा रहा है not a feature of active transport, so क्या यहाँ पर आंसर्स है? डेफिनेटली as I can see, हाँ जी बेटा, बिल्कुल आपका रिस्पॉन्स बिल्कुल सही है। एंड आई सी रिस्पॉन्स फ्रॉम ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, सो यू डोंट हैव टू वरी, आई ऑलवेज गो थ्रू ईच एंड एवरी वंस रिस्पॉन्स। मुझे सब पता होता है यहाँ पर कौन से बच्चे कैसे आंसर्स कर रहे हैं। और कुछ बच्चे चिरंजीवी, नो नो आई एम नॉट सेइंग टॉकिंग अबाउट यू, आई एम जस्ट सेइंग कि कुछ बच्चे बीच बीच में से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, 2-3 क्वेश्चन स्किप कर देते हैं, ऐसे भी बच्चे हैं क्लास में। सो दैट आई ऑलवेज गो थ्रू, मुझे सारा पता रहता है कौन से बच्चे कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, सो डोंट वरी अबाउट दैट। ओके, सो यस, एक्टिव ट्रांसपोर्ट का फीचर क्या नहीं है पूछ रहे हैं। सो एक्टिव ट्रांसपोर्ट वी ऑल नो इट अकर्स अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ऑफ कोर्स लो से हाई कंसंट्रेशन की तरफ होता है, सो अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ये तो सही बात है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट नॉन सिलेक्टिव होता है क्या? नो, इट इज अ हाईली सिलेक्टिव प्रोसेस, इट्स नॉट नॉन सिलेक्टिव, इट्स अ हाईली सिलेक्टिव प्रोसेस। सो बी हैज टू बी द करेक्ट आंसर हियर। देन मेम्ब्रेन्स के थ्रू होता है, ऑफ कोर्स एटीपी रिक्वायर्ड होता है एक्टिव ट्रांस में, डेफिनेटली। सो नॉन सिलेक्टिव है, ये गलत बात है इसके बारे में, बिकॉज एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज एक्चुअली हाईली सिलेक्टिव प्रोसेस, सो दैट्स व्हाई बी इज आवर आंसर। कमिंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम 2019 अगेन, क्वेश्चन में पूछा है आपसे जाइलम ट्रांसलोकेट्स। जाइलम क्या ट्रांसलोकेट करता है? वाटर, मिनरल सॉल्ट, सम ऑर्गेनिक नाइट्रोजन एंड हार्मोन्स। ओनली वाटर, water mineral salts only, and water mineral salts and some organic nitrogen only. These are the options। और आपको बताना है कि जाइलम क्या क्या ट्रांसलोकेट कर सकता है अपने साथ में। सो लेट्स सी what all you have to answer। again डायरेक्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ऐसे क्वेश्चंस के आंसर्स आप लोग 5 सेकेंड्स के अंदर अंदर दे सकते हो। जाइलम, what does it translocate? ओनली वाटर मिनरल्स, या फिर वाटर मिनरल सॉल्ट्स एंड सम ऑर्गेनिक नाइट्रोजन ओनली। दैट इज द ऑप्शंस इन फ्रंट ऑफ यू एंड लेट्स सी व्हाट ऑल यू हैव टू आंसर। डेफिनेटली दिस वी हैव स्टडीड कि जो हमारा जाइलम होता है वो वाटर, मिनरल सॉल्ट्स, उसके साथ साथ ऑर्गेनिक नाइट्रोजन, हार्मोन, सब कुछ अपने अंदर ट्रांसलोकेट कर सकता है। सो दैट इज व्हाई ए हैज टू बी द राइट आंसर हियर। ए हमारा बिल्कुल सही आंसर रहेगा। देन कमिंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the direction of movements of sugar in phloem? phloem के अंदर जो शुगर का मूवमेंट होता है उसकी डायरेक्शन क्या होती है? बाई डायरेक्शनल, नॉन मल्टी डायरेक्शनल, अपवर्ड, डाउनवर्ड? दैट यू हैव टू टेल। फ्रॉम 2019 द क्वेश्चन इज बीन आस्क्ड हियर। जाइलम के थ्रू कैसा ट्रांसपोर्ट होता है, फ्लोएम के थ्रू कैसा होता है, दैट वी हैड एक्चुअली स्टडीड बिफोर, वी ऑल नो दिस थिंग एंड लेट अस सी व्हाट ऑल यू हैव टू आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्या आंसर्स रिसीव हो रहे हैं यहाँ पर? हमारे बच्चे क्या कहना है इनका? लेट्स सी।
ऑल राइट, सो एवरीवन नोस डेफिनेटली कि फ्लोएम के थ्रू जो मूवमेंट होती है, फ्लोएम के थ्रू शुगर की मूवमेंट होती है बाई डायरेक्शनल. दैट मीन्स इट कैन टेक प्लेस फ्रॉम रूट टू लीव्स एज वेल एज इन द अदर डायरेक्शन ऑल्सो. बाई डायरेक्शनल मूवमेंट होती है. जबकि जाइलम के थ्रू जो मूवमेंट होती है दैट इज यूनिडायरेक्शनल. दैट मीन्स ऑलवेज फ्रॉम रूट टू लीव. सो दैट्स वाई अगर फ्लोएम की बात हो रही है सो बाई डायरेक्शनल हैज टू बी द राइट आंसर. ए इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर ओवर हियर. ए ही हमारा सही आंसर है जैसा कि मोस्टली सारे बच्चों ने कहा है. सो ए इज करेक्ट. नाउ मूविंग ऑनवर्ड्स towards the next question. और क्वेश्चन में पूछा है स्टोमेटल मूवमेंट इज नॉट अफेक्टेड. स्टोमेटल मूवमेंट को इनमें से किससे कोई फर्क नहीं पड़ता है? टेम्परेचर, लाइट, ऑक्सीजन कंसेंट्रेशन या फिर CO2 कंसेंट्रेशन. 2018 का क्वेश्चन हमने ये पढ़ा है. स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग का मैकेनिज्म क्या होता है, किन फैक्टर से वो अफेक्ट हो सकता है, स्टोमेटल ओपनिंग या फिर क्लोजिंग. दैट यू हैव टू टेल ओवर हियर. स्टोमेटल ओपनिंग किससे यहाँ पर स्टोमेटल मूवमेंट अफेक्ट नहीं होता है. द फैक्टर्स आर रिटन इन फ्रंट ऑफ यू एंड यू हैव टू सेलेक्ट द राइट आंसर फॉर दैट. सो लेट्स सी व्हाट ऑल यू हैव टू टेल हियर. स्टोमेटल मूवमेंट डेफिनेटली करेक्ट. एज वी ऑल नो कि स्टोमेटा की जो मूवमेंट होती है वो आपके टेम्परेचर से अफेक्ट होती है, लाइट से अफेक्ट होती है, CO2 कंसेंट्रेशन से भी अफेक्ट हो सकती है, लेकिन ऑक्सीजन कंसेंट्रेशन का उससे कोई लेना देना नहीं है. सो दैट इज वाई सी हैज टू बी द राइट आंसर ओवर हियर. सी हमारा बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है. बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है वाटर पोटेंशियल हमारे प्योर वाटर का कितना होता है. सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन, एवरीवन मस्ट रिमेंबर. हमारे वाटर का, प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल व्हाट इज दैट. वी नो दैट इट इज मैक्सिमम होता है. और कितना होता है मैक्सिमम वाटर पोटेंशियल प्योर वाटर का, that also we must know. So let's see what all you have to answer. Definitely इसमें तो किसी को कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए. एकदम lightning fast speed से I have received the answers over here and we all know कि अगर प्योर वाटर के वाटर पोटेंशियल की बात चल रही है, so प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल happens to be maximum but that happens to be 0. इसके अलावा कोई भी दूसरा सोल्यूशन होगा दुनिया का उसका नेगेटिव रहेगा वाटर पोटेंशियल. So 0 is the right answer here. अगर इस तरह के देखो आपको, अगर आपकी नीट में ऐसे क्वेश्चंस आ जाए जब आप एग्जाम देने बैठोगे और इस टाइप के अगर डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाएं, सो इट्स गोइंग टू बी अ केक वॉक फॉर यू. सो यू हैव टू मेक श्योर कि आप अपनी NCERT पे बहुत ही अच्छे से ग्रिप बना के रखेंगे एंड तक. एंड ऑफ द सेशन मतलब 12th के एंड तक. 11th और 12th दोनों के NCERTs आपने 6 से 7 बार तो मिनिमम रिवाइज की होनी चाहिए. देन विच ऑफ द फॉलोइंग फैसिलिटेट्स ओपनिंग ऑफ स्टोमेटल अपर्चर. ओपनिंग ऑफ स्टोमेटल अपर्चर इनमें से कौन फैसिलिटेट करता है, दैट इज द क्वेश्चन एंड द ऑप्शंस आर इन फ्रंट ऑफ अस. दैट इज डिक्रीज इन टर्जिडिटी ऑफ गार्ड सेल्स, radial orientation of cellulose microfibrils in the cell walls of guard cells, longitudinal orientation of cellulose microfibrils in the cell wall of guard cells या फिर contraction of outer wall of guard cells. आपको बताना है ओपनिंग स्टोमेटल अपर्चर का इनमें से किसकी वजह से फैसिलिटेट हो सकता है, इनमें से कौन सा फैक्टर हेल्प कर सकता है इन द ओपनिंग ऑफ स्टोमेटल अपर्चर. दैट यू हैव टू टेल हियर एंड ऑप्शंस आपको पढ़ते ही बिल्कुल समझ में आ जाएगा व्हाट शुड बी द राइट आंसर. सो लेट्स सी व्हाट ऑल यू हैव टू से फॉर दिस. ओके, सो एज वी कैन सी हियर वी ऑल नो, हम सभी ने ये पढ़ा हुआ है कि गार्ड सेल्स जब टर्जिड हो जाते हैं तो उसकी वजह से आपका जो स्टोमेटल अपर्चर है इट्स ओपनिंग वुड बी फास्ट विल बी डन. हमारे स्टोमेटल अपर्चर की ओपनिंग हो जाएगी. और क्या ये डिक्रीज इन टर्जिडिटी ऑफ गार्ड सेल की वजह से होता है? नो, ओपनिंग हैपेंस बिकॉज ऑफ इंक्रीज टर्जिडिटी. अगर डिक्रीज हो जाएगी तब तो ये क्लोज हो जाएगा. सो ये सही नहीं है. रेडियल ओरिएंटेशन ऑफ सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल्स इन द सेल वॉल ऑफ गार्ड सेल्स. हमारे गार्ड सेल्स जो होते हैं उनकी सेल वॉल में इस तरह से रेडियल ओरिएंटेशन इज एक्चुअली सीन ऑफ योर सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल्स. तो ये तो बिल्कुल सही बात है. लॉन्गिट्यूडिनल ओरिएंटेशन इस तरह से ओरिएंटेशन नहीं होता एक्चुअल में, दैट इज रेडियल ओरिएंटेशन. सो ये बिल्कुल सही बात है, इसी की वजह से फैसिलिटेशन हैपेंस. सो बी इज राइट हियर. देन डी ऑप्शन में दिया है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ आउटर वॉल ऑफ गार्ड सेल्स. नो, तो दैट इज ऑल्सो नॉट करेक्ट. सो बी हैज टू बी द राइट आंसर हियर. जितने भी बच्चों ने बी आंसर दिया है दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट. देन कमिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम द ईयर 2016 का क्वेश्चन है हमारे सामने एंड द क्वेश्चन इज water vapor comes out from the plant leaf through the stomatal opening.
through the same stomatal opening, CO2 diffuses into the plant during photosynthesis. Reason out the above statement using one of the following options. And the options are: above process happens only during night time. One process occurs during daytime and other at night time. Both processes cannot happen simultaneously, या फिर both processes can happen together because the diffusion coefficient of water and CO2 is different. That has been asked here कि water vapor जो है that comes out of the plant leaf through stomatal opening, और same stomatal opening से ही हमारा CO2 भी diffuse होता है हमारे plant के अंदर photosynthesis के दौरान. So इसमें से आपको इस context में correct statement you have to select from these, and let's see what all reason you have to select for this. क्या correct statement आप मानते हैं इसके लिए? Let us have a look at your answers too. Okay, so as we can see here, mixed answers आ रहे हैं इस question के लिए. I am receiving mixed answers here. Okay, and Ahana is saying that plant physiology is very difficult. Plant physiology is actually not difficult. Plant physiology is lengthy, we can say that. Plant physiology में as such कंसेप्चुअल सिर्फ इसी चैप्टर में सबसे ज़्यादा है, फोटोसिंथेसिस है, रेस्पिरेशन है. सो इफ़ यू सी इट वेटेज वाइज, तो वेटेज इसका इतना ज़्यादा नहीं है, बट स्टिल लेंदी बहुत ज़्यादा है ये चैप्टर्स प्लांट फिजियोलॉजी के, राइट. एंड दैट इज़ वाई मोस्टली बच्चे इससे बोर हो जाते हैं, दे डोंट लाइक इट. बट स्टिल यू हैव टू मेक श्योर कि आप ऐसे जितने भी आपके पोर्शंस हैं इनको स्किप ना करें. प्लांट फिजियोलॉजी इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन, एंड if you are finding it difficult, so you have to make sure कि आप क्लासेस में अपने डाउट्स पूछें. यू हैव टू कीप क्लियरिंग योर डाउट्स अगेन एंड अगेन. आप अपने जो भी क्वेश्चंस हैं उसको प्रैक्टिस करें वहाँ पर. वेर एवर यू गेट स्टक यू कैन रीच आउट टू मी. अदर दैन दैट यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर रिवाइजिंग दीज चैप्टर्स प्रॉपरली, क्योंकि ये कुछ ही चैप्टर्स हैं जिनमें थोड़े कंसेप्ट्स हैं, बाकी तो थियोरेटिकल है बहुत ज़्यादा प्लांट फिजियोलॉजी. सो दैट इज़ वाई यू हैव टू मेक श्योर दैट वेन एवर यू आर डूइंग दीज चैप्टर्स ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी यू कीप सॉल्विंग योर डाउट्स एट दैट टाइम ओनली. मतलब जब भी आप पढ़ रहे हो उसी टाइम अपने डाउट्स को क्लियर करते जाओ साथ साथ में. सो यू वोंट फाइंड इट दैट डिफिकल्ट. ओके, सो नाउ वाटर वेपर्स जो है वो इसकी बात चल रही थी यहाँ पर. येस, वी वर टॉकिंग अबाउट द क्वेश्चन. लेट्स सी व्हाट आंसर्स आई हैव रिसीव्ड. बीच बीच में बच्चे कुछ कुछ अपनी क्वेरीज पूछते रहते हैं, एंड एज आई कैन सी हियर द आंसर्स दैट आई एम रिसीविंग फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चंस, मोस्टली आंसर आप लोग जो दे रहे हैं वो है डी. मोस्टली बच्चों का कहना है डी इज द राइट आंसर. इज डी द राइट आंसर हियर? लेट्स सी. Both processes can happen together because the diffusion coefficient of water and CO2 is different. क्या ये साथ साथ में हो सकता है, simultaneously हो सकता है कि water vapors भी come out, they come out of the plant leaf and CO2 भी अंदर आ जाए? Yes, definitely it is possible. Because of this reason, that is true. This is actually possible, and that's why D has to be the right statement here. D हमारा बिल्कुल correct statement है यहाँ पर, and that's why D we have to select. So D हम यहाँ पर select करेंगे, and we will move onwards the next question. And the question is, root pressure develops due to, root pressure किसकी वजह से होता है? Active absorption, passive absorption, increase in transpiration, या फिर low osmotic potential in soil? That is the question in front of you. You have to tell about the root pressure, and let's see what all you have to answer here. Yes, as I can see, you all know कि रूट प्रेशर की जब बात चल रही है, so रूट प्रेशर किसकी वजह से डेवलप होता है. एंड मैम यू हैड गिवन हिंट. हिंट कब दिया मैंने? तो अभी इसके बारे में बात ही नहीं की रूट प्रेशर के बारे में. आई डिड नॉट टॉक अबाउट इट. ऋषि, व्हेन डिड आई गिव द हिंट? कब मिल गए हिंट तुमको? हाँ, हम पहले बात कर चुके हैं इसके बारे में. रूट प्रेशर की वजह से गटेशन देखने को मिलता है हमें. एंड रूट प्रेशर इट एक्चुअली हैपन्स ड्यू टू एक्टिव अब्जॉर्प्शन. बी इज डेफिनेटली करेक्ट. जितने भी बच्चों ने यहाँ पर आंसर भी किया है दैट इज डेफिनेटली ट्रू, एंड बी ही हमारा सही आंसर रहेगा. देन कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. Transpiration and root pressure cause water to rise in plants by. जो ट्रांसपिरेशन और रूट प्रेशर होता है वो हमारे प्लांट के अंदर वाटर को ऊपर कैसे पहुंचाते हैं? ए ऑप्शन, पुशिंग इट अपवर्ड, पुशिंग एंड पुलिंग इट रिस्पेक्टिवली,
पुलिंग इट अपवर्ड या फिर पुलिंग एंड पुशिंग इट रिस्पेक्टिवली। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। यू ऑल नो ट्रांसपीरेशन और रूट प्रेशर के बारे में यहाँ पर एक एक बच्चा जानता है कि किस टाइप के प्रेशर होते हैं ये। ओके, ट्रांसपीरेशन एंड रूट प्रेशर, that has been asked over here. So let's see what all you have to answer for this question. ट्रांसपीरेशन और रूट प्रेशर के अंदर आपको बताना है कि किस तरह से मूवमेंट होती है वाटर की। एंड एज वी कैन सी हियर, yes, definitely the answers that I have received here very good. mostly बच्चों के आंसर्स बिल्कुल सही है। और एंड होते होते जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं तो बीच बीच में बहुत सारे बच्चे स्किप करने लग जाते हैं क्वेश्चंस को। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? कैन आई नो द रीजन कि बीच बीच में ऐसे क्यों स्किप हो जाते हैं? हाउ मेनी टाइम्स डू आई हैव टू टेल दैट यू हैव टू बी अटेंटिव योर वेरी इंपॉर्टेंट सेशंस, PYQ सेशंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सो यू हैव टू बी वेरी अटेंटिव ओवर हियर। अब देखो, ट्रांसपीरेशन, वी ऑल नो ट्रांसपीरेशन इट क्रिएट्स अ पुल। Everyone knows this, ट्रांसपीरेशन पुल क्रिएट होता है, सो ये पुल की वजह से होता है जिसकी वजह से वाटर मूव्स अपवर्ड्स। रूट प्रेशर, इट हैपन्स बिकॉज ऑफ अ पुश, यहाँ से नीचे से पुश मिलता है रूट प्रेशर के अंदर, सो इट इज बिकॉज ऑफ पुश। सो ट्रांसपीरेशन एंड रूट प्रेशर, पुलिंग एंड पुशिंग रिस्पेक्टिवली हैज टू बी द राइट आंसर हियर। वाइल इसमें दिया है पुशिंग एंड पुलिंग, वी ऑल नो ट्रांसपीरेशन पुलिंग की वजह से होता है, रूट प्रेशर नीचे से पुश की वजह से लगता है। सो दैट इज वाई डी हैज टू बी द करेक्ट स्टेटमेंट हियर। डी हमारा बिल्कुल सही स्टेटमेंट है यहाँ पर, दैट्स वाई डी मार्क करके हम आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दैट इज 2013 का क्वेश्चन। क्या पूछ लिया है देखते हैं। Which of the following criteria does not pertain to facilitate transport does not pertain पूछा है, ठीक है, to facilitated transport, and the options are transport saturation, uphill transport, requirement of special membrane proteins या फिर high selectivity. These are the options. facilitated transport, facilitated diffusion के बारे में आपको सही गलत स्टेटमेंट सेलेक्ट करना है कि इसमें से क्या गलत है about facilitated diffusion, facilitated transport. We have actually studied that very well, and let's see what all you have to answer for this question. क्या आप सभी आंसर दे रहे हैं यहाँ पर? अरे इस क्वेश्चन के लिए, मतलब जिसके लिए मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि ये तो सभी को आ जाएगा, कोई भी इसमें गलत नहीं होगा, उसके लिए डेफिनेटली मिक्स्ड आंसर्स आ जाते हैं इसमें। इसके लिए मिक्स्ड आंसर्स कैसे आ सकते हैं? दे आर टॉकिंग अबाउट फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट ना। फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट में वी ऑल नो दैट इट इज एग्जैक्टली लाइक डिफ्यूजन, डिफ्यूजन की तरह ही होता है ये। इसमें ट्रांसपोर्ट सैचुरेशन भी होगा, दैट मीन्स जब एक जगह पर दोनों इक्वल हो जाएंगे तो ट्रांसपोर्ट सैचुरेशन विल ऑल्सो बी देयर। स्पेशल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स इसके लिए रिक्वायर्ड होते हैं, जैसे कि डिफ्यूजन में हमने पढ़ा था कि सिंपली हाई टू लो कंसंट्रेशन में वो जाता है। डिफ्यूजन में व्हाट हैपेंस दैट मॉलिक्यूल्स दे मूव फ्रॉम हाई टू लो कंसंट्रेशन। ठीक उसी तरह से हमारे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में भी द मूवमेंट इज फ्रॉम हाई टू लो कंसंट्रेशन। Okay, but the specific thing about facilitated transport is that it requires special membrane proteins. इसमें membrane proteins चाहिए होते हैं और ये highly selective होता है unlike the simple diffusion. So that is why ये सारी बातें तो इसके बारे में सही है, लेकिन is it an uphill transport? No, that's not true. Uphill transport का मतलब है from low to higher concentration अगर जाएगा, against the concentration gradient जाएगा, उसे हम uphill transport कहते हैं। That happens in एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एटीपी भी खर्च करने पड़ते हैं, जबकि फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट में एटीपी वोंट बी रिक्वायर्ड बट सम स्पेसिफिक प्रोटीन विल बी रिक्वायर्ड। सो दैट इज व्हाई बी हैज टू बी द राइट स्टेटमेंट हियर। जितने भी बच्चों ने बी आंसर किया है दैट इज डेफिनेटली ट्रू, डेफिनेटली करेक्ट। कमिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम द ईयर 2011. In land plants, the guard cells differ from the upper epidermal cells in having. Land plants के अंदर guard cells कैसे differ करते हैं? साइटोस्केलेटन होता है उनके पास, माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, ER होते हैं या फिर क्लोरोप्लास्ट होता है। अभी तो बहुत ही डायरेक्ट इजी पीजी क्वेश्चन एकदम पूछा हुआ है आपसे। आई होप यू ऑल विल बी एबल टू आंसर इट। सभी ने guard cell देखा है and everyone remembers the answer over here. Okay. So what are you saying? स्तुति, yes, बहुत बड़ा हिंट। क्या, मैंने तो आंसर ही बता दिया यहाँ पर, हिंट नहीं कहते इसको। आई हैव एक्चुअली गिवन द आंसर क्योंकि बहुत ही आसान क्वेश्चन था, दैट इज वाई। बिकॉज सभी को पता है कि गार्ड सेल के अंदर वी ऑल नो दैट देयर इज प्रेजेंस ऑफ
क्लोरोप्लास्ट, गार्ड सेल्स में क्लोरोप्लास्ट होते हैं एंड एवरीवन नोस दिस थिंग, राइट? सो दैट्स व्हाई आई जस्ट मार्क्ड इट एज इट इज. देन गटेशन इज द रिजल्ट ऑफ, अब देखो गटेशन कितनी बार रिपीट हुआ है शुरू से एंड तक. गटेशन इज द रिजल्ट ऑफ रूट प्रेशर. अब इसमें भी किसी को कोई दिक्कत है? सब एक्सेप्ट कर सकते हैं इसको? एवरीवन कैन अग्री विद दिस? यस, डेफिनेटली. All right, so here we have actually seen the questions from your transport in plans from the year 2021 up to the year 2011 we have seen. और यहाँ पर हमारा transport in plans का सेशन खत्म. अब नेक्स्ट क्लास में हम बिगिन करेंगे एक नया चैप्टर, उसके PYQs हम सॉल्व करेंगे. टिल देन you all have to stay tuned here, you all have to keep studying, stay focused, stay tuned and bye.